ادائیگی خراج کا طریقہ اور خراج سے سرکاری محصول کی منہائی۔ نمبر 1، بعض شرکاء کی رائے میں خراج واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو شرکائے سیمینار ہندوستان کی خراجی زمینوں میں خراج لازم قرار دیتے ہیں اور خراج کو حق کے شریک قرار دے کر واجب الادا کہتے ہیں، ان کا رجحان یہ ہے کہ زمین کا سرکاری لگان ادا کرنے سے خراج شرعی ادا نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان مالک زمین پر لازم ہے کہ خراج خود نکال کر مصارف خراج میں صرف کرے۔ اور بعض شرکائے سیمینار کی رائے ہے کہ خراج شرعی سے سرکاری لگان منہا کرنے کے بعد خراج کی باقی مقدار مصارف خراج میں صرف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ہندوستان کی خراجی زمینوں پر خراج مقاسمہ لازم ہے یا خراج موظف؟ اس سلسلے میں بعض شرکائے سیمینار نے ادائیگی اور حساب کی سہولت کے پیش نظر تمام خراجی زمینوں میں خراج مقاسمہ لازم قرار دیا ہے، لیکن وجوب خراج کا رجحان رکھنے والے اکثر حضرات کے نزدیک جن زمینوں کے بارے میں تاریخی طور پر ثابت ہے کہ فتح اسلامی کے بعد ان پر خراج مقاسمہ لازم قرار دیا گیا تھا، مثلا گجرات و راجپوتانہ، ان میں خراج مقاسمہ لازم ہوگا اور اس کی مقدار وہی ہوگی جو اسلامی فتوحات کے وقت متعین کی گئی، اور باقی تمام خراجی زمینوں میں خراج موظف کی ادائیگی لازم ہوگی۔ نمبر 3، وجوب خراج کا رجحان رکھنے والے اکثر شرکائے سیمینار نے توظیف عمری کو بنیاد بنا کر غلہ اور کپاس جیسی عام پیداوار کی خراجی زمینوں میں فی جریب 1 درہم نقد یعنی 3.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت اور پیداوار میں سے 1 سا یعنی 3 کلو 325 گرام لازم قرار دیا ہے، اور سبزیوں کی زمین میں فی جریب 5 درہم یا اس کی قیمت اور انگور یا کھجور کے متصل درختوں والے باغ پر فی جریب 10 درہم چاندی یا اس کی قیمت لازم قرار دی ہے۔ جن حضرات نے یہ کہا کہ ہندوستان کی زمینیں اگر ان شرطوں کے مطابق تشریح نہیں ہے، خراجی ہے، تو وہاں خراج ادا کرنا ہے، تو پھر وہاں خراج کس طریقے سے ادا کیا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اگر خراج ادا ہی کرنا ہے تو ایک طرف تو خراج اسلامی پڑی جائے زکوٰۃ کی طرف، لیکن حکومت اپنی طرف سے کوئی ٹیکس لیتی ہے کاشتکار کے پاس سے، تو وہ کاشتکار کو جو ٹیکس دینا ہے یہ ٹیکس بھی دے اور ساتھ میں خراج بھی دونوں ادا کرے، تو ایک مسلمان پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو آیا اس کو اتنا ثابت کر دیا جائے، مثلا حکومت کی طرف سے 5,000 روپیہ ٹیکس آیا ہے اور اس کو زکوٰۃ ہے، اس کو جو خراج ادا کرنا ہے 20,000، تو 5,000 کم کر کے 15,000 تو وہاں دے گا اور 5,000 حکومت کو ٹیکس ادا کرے گا۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، مکمل اس کو دینا ہے، سرکاری ٹیکس الگ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سرکاری ٹیکس کے سلسلے میں علماء کرام نے جو چیزیں لکھی ہے، 2 قسم کے ٹیکس آتے ہیں۔ ایک وہ ٹیکس ہے کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، مثلا روڈ ٹیکس ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے جو چیزیں ہم استعمال کریں اور ان پر وہ ٹیکس لیں۔ اس کے مقابلے میں انکم ٹیکس یہ جو وصول کیا جاتا ہے، ہاؤس ٹیکس یہ وصول کیا جاتا ہے، اور بھی اس قسم کے کئی ٹیکس ہے جس میں ہماری طرف سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے، ہماری اپنی زمین ہے، ہمارا اپنا کاروبار ہے اور اس کے اوپر وہ ہم سے ٹیکس لے رہے، ہمارا اپنا مکان ہے اس پر وہ ہمارے پاس سے ٹیکس لے رہے، تو ایسے ٹیکسز کی ادائیگی ایک مسلمان کس طریقے سے کرے؟ اب اس پر مسئلہ آیا کہ آیا سود کی رقم سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، رات دن اس طرح کے مسئلے چل رہے ہیں۔ ابھی گودرا سے اسی قسم کا سوال آیا ہوا ہے بڑی طور پر، ان کو ٹیکس دینا ہے، انکم ٹیکس، انکم ٹیکس کی ادائیگی کا، تو اب کسی نے بتلا دیا کہ انکم ٹیکس کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بلا تکلف سود کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد خان کوئی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے ہاؤس ٹیکس کے سلسلے میں فتاوی میں لکھا ہے، اور دوسرے علماء کرام نے بھی دارالعلوم کا بھی فتوا گیا ہے۔ البتہ ایک شرط ان حضرات نے دوسری ذکر کی، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپ کو ادا کرنا ہے سود، یعنی ٹیکس تو ظالمانہ ہے، اب آپ کو اس ٹیکس کے اندر رقم ادا کرنی ہے سود کی، تو یہ دیکھا جائے کہ ٹیکس جس کو ادا کرنا ہے ٹیکس تو حکومت کو ہی دینا ہے، لیکن بینکیں 2 قسم کی ہے، سرکاری بینکیں اور غیر سرکاری بینکیں۔ اگر غیر سرکاری بینک کا سود آپ کے پاس ہے تو اس سود کو آپ ادا نہیں کر سکتے حکومت کے انکم ٹیکس، اور اگر سرکاری ہی بینک ہے آپ کی جہاں سے سود آپ کو ملا ہے اور ادھر سود لینے کے لیے رقم جمع نہیں کروانی ہے، اور ایک سال یہاں قریب میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میرے پاس سود کی رقم پڑی ہے تو میں فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیتا ہوں، ایسا اچھی چیز ہے، ثواب کی نیت کے بغیر دے دو۔ پھر دوسرا سوال آیا کہ کیا اس نیت سے میں رقم جمع کروا سکتا ہوں بینک میں؟ محض میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اس کے لیے نہیں کہا ہے کہ آپ سود کسی کو دینے کے لیے اپنی رقم جمع کرواؤ، اسی طرح اس سود سے آپ دوسرے فائدے اٹھانے ہی کے لیے کرو کہ
गवर्नमेंट का टैक्स आएगा तो इसमें से दे देंगे। तो इत्तेफाकन आपके पास कोई सूदी रकम जमा हो गई और अब आपको अदा करना है, तब तक कुछ गुंजाइश थी। लेकिन अब बाकायदा यही तलाश करें कि जिस तरह हुकूमत के ऐसे टैक्स आते रहे, इन टैक्सों में मैं क्या करता रहूँ, रकम देता रहूँ, तो ये मुनासिब नहीं। राइस तो हो जाएगा, आने मिल जाएगा। अब इसकी नीयत पर हम थोड़े हमला कर सकते हैं कि इसलिए रखा कि इसलिए रखा। इसलिए ये फतवा देते वक्त ये चीज़ भी साथ में लेकिन लिख दी जाए ताकि बाकायदा सूद को इन टैक्सेस की अदायगी के लिए जरिया बनाया जाए। अगर से हिंदुस्तान के मसाइल इतने पेचीदा है कि मुसलमानों के लिए इस किस्म के मसाइल आते ही रहते हैं, इसलिए उलमा अपनी तरफ से कुछ न कुछ गुंजाइश देते रहते हैं। लेकिन साफ सरी सूद को बिला तकल्लुफ जायज़ कह देना ये जायज़ नहीं है। इसलिए बीच में लगाया कि सूद की रकम तो जायज़ है, लेकिन सवाब की नीयत के बगैर दे दो ताकि सवाब न हो। फिर कुछ उलमा कहते हैं कि बगैर नीयत के तो अल्लाह सवाब दे भी देगा। ये इस तरीके से जो लोगों को बतलाया जाता है, ये सब पेचीदगियाँ दूर करने ही के लिए बतलाया जाता है। यहाँ गुफ्तगू है खिराज। तो कुछ उलमा ने तो फरमाया कि हिंदुस्तान की ज़मीन उसकी ही समझी जाए, इसलिए खिराज है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर शर्तों के मुताबिक वो ज़मीन खिराज ही है तो वहाँ खिराज देना है। उन्होंने ये कहा कि सरकारी लगान अदा करने से खिराज शरिया जाती है। यकीनी बात है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो शरई खिराज आपके ज़िम्मे लाजिम हुआ है, उस शरई खिराज में से आप कुछ रकम टैक्स की अदायगी के लिए कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ें अलग हैं, ये भी आप जानते हैं। खिराज और उस्र, मुसलमान पर अगरचे खिराज आया है, लेकिन आया है इस्लामी निस्बत से। ज़मीन के खिराजी होने की बुनियाद पर खिराज देना है, वरना मुसलमान पर जैसे ज़कात आती है माल में, इस तरह ज़मीन में खिराज आया है मिन वजह ये उस्र के दर्जे में। चाहे इस्लामी नुक्ते नज़र से खिराज ये टैक्स है और उस्र ये टैक्स नहीं, इबादत है। लेकिन जब इस तरह का मामला हो रहा है तो इसकी गुंजाइश दी जा सकती है कि इतनी रकम आप टैक्स में अदा कर दो, इसलिए कि मुसलमान पूरा खिराज भी अदा करे और टैक्स भी दे। अगर उसके पास सूद की रकम है तो यही कहा जाएगा कि पूरा खिराज अदा कर दो और सूद की रकम से ज़मीन का जो टैक्स आता है, महसूल खाता जो आता है, वो अदा कर दो। ये भी एक शक्ल है। फिर एक और मसला आया, सरकारी लगान मिन्हा करने की बात, खिराज की बाकी मिक़दार खिराज के मसारिफ में सब करना जरूरी है। उन उलमा ने गुंजाइश दी और यही अब आजकल मुसलमान पर आएगा, इसलिए कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्स के साथ उसको अल्लाह पाक का भी फ़र्ज अदा करना है, उसको ज़कात देनी है, उसको कुर्बानी है तो कुर्बानी, सदक़े फ़ित्र है तो वो, उस खिराजी ज़मीन है तो वो अदा करना है। इसलिए इन सब के साथ उसको ये भी देना है, इसलिए मिन्हा करने की गुंजाइशें दी है। दूसरा मसला आया कि अगर हिंदुस्तानी ज़मीनों पर खिराज आप लाजिम करते हो तो कौन सा खिराज आए। ये खिराज मुवज़्ज़फ़ है तो शरीयत में मुतय्यन है, हर जगह के लिए एक ही है वो वजीफा शरीयत के बाद से, और एक है खिराज मुकासमा, और तीसरा है तौज़ीफ़ उमरी। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में आए, सिंध और राजपूताना का जो इलाका कहा कि वो इलाका राजपूताना से मुराद, और खिराज में भी मैंने आपको कहा कि खिराज तक तो इनकी आमद का जिक्र है। इसलिए इस्लाम की अव्वल फतह के वक्त ब्राह्मणाबाद जो था कराची के करीब, डबेल नाम सुना है, डबेल भी कराची के करीब, ब्राह्मणाबाद पूरा ऊपर है। अब तो ब्राह्मणाबाद नाम बाकी नहीं रहा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के वक्त वो था। तो उन्होंने हिंदुस्तान के सिंध के, चूँकि उसको सिंध भी हिंदुस्तान था ही नहीं ये कहा जाए, सिंध भी अलग था और भारत नाम का कोई मुल्क था नहीं, सब अलग अलग रियासतें थी। तो मुसलमानों ने आकर इनको पूरा दिया अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने फिर हिंदुओं को दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये फरमाते रहते थे कि जिन्ना की गलती की वजह से 5000 साल तारीख में, हिंदुओं की जो 5000 साल पूरी तारीख है, इस तारीख में कभी इतना बड़ा मुल्क इनके पास नहीं आया। भारतवर्ष बोलते हैं लेकिन भारतवर्ष नाम का कोई वर्ष था नहीं, ये इनकी ज़बान से है। ये तो 1200 रजवाड़े तो भारत आज़ाद हुआ उस वक्त थे, तो फिर उससे पहले कितने होंगे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सीधी लड़ाई मोहम्मद बिन शिहाबुद्दीन घोरी से हुई है और दूसरे राजाओं की नहीं हुई है। अगर हिंदुस्तान एक होता तो पूरा मुल्क लड़ता, लेकिन नहीं लड़े हैं, बल्कि बुलाया गया। महमूद गजनवी को भी बुलाया गया, घोरी को भी बुलाया, और बाबर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बुलाने लगे कि आओ ये सोने की चिड़िया है, तुम ही संभाल सकते हो, बाकी तो बेचने के लिए सब तैयार है चिड़िया। तो
تو اس لیے انہوں نے اس موقع پر خراج مقاصمہ محمد بن قاسم نے ان کو دیکھ کر ان کے پاس سے کم لیا. حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان اور عرب کے تعلقات کتاب آپ کی ہے، عرب و ہند کے تعلقات، اس کے اندر بھی اس کو لکھا ہے. اور دوسری کتاب ہے ہندوستان عربوں کی نظر میں ہے، سب کو دکھانے میں بڑی ہوئی ہے. اردو کتاب میں ہم نے انہیں کے حوالے سے گجرات کا سب کچھ لے لیا ہے تاکہ گجرات کی تعلیم پڑھنے کے لیے جزیرۃ العرب اور عرب ممالک کے تعلقات، جزیرۃ العرب اور گجرات کے تعلقات اس کو اسی لیے لیا. تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے فرمایا کہ انہوں نے محمد بن قاسم نے ان کے پاس سے خراج نہیں لیا، بلکہ ان کو یعنی خراج تو لیا لیکن وہ خراج نہیں جو خراج موظف تھا، بلکہ کچھ کمی کر دی. اس کی گنجائش ہے کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے، اور ہدایہ کے اندر آپ سن چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تغلب کے نصارہ کے پاس سے، بنو تغلب کے نصارہ سے جو لیا وہ پوری رقم نہیں لی ہے، کچھ کم کر کے ہی ان کے پاس سے لی تھی. اس طریقے سے ہندوستان کے برہمنوں کو بھی انہوں نے سمجھا. نام برہمن آباد ہے لیکن حکومت جو تھی وہ بہت لوگوں کی تھی. ظاہر بھی بہت تھا کہ ہندو تھا، لیکن خیر ہندو بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لے، تب بھی برہمن آباد شہر تھا، اس کی نسبت سے ان کو بڑا سمجھا گیا. اور محمد بن قاسم نے ان کی رعایت کی، اور رعایت کرتے ہوئے ان کے پاس سے مقاسمہ ہی لیا، یعنی آپس میں مشورہ کر کے جو طے ہو. تو اب گجرات میں بھی ایک مسلمان پر خراج آئے تو کون سا آئے؟ جب غیر مسلمین سے وہ لیا گیا تو یہاں کی زمین بھی اگر خراجی ہو تو خراج مقاسمہ ہی لیا جائے. اس لیے کہ اب غیر مسلم ہندوستان اب وہ رہا نہیں دارالاسلام، اس لیے اب دارالاسلام نہیں ہے تو یہاں خراج بھی آئے گا کون لے گا ان کے پاس سے، بلکہ ہم پر بھی خراج آئے گا اگر خراجی زمین ہے تو، اور کچھ نہیں ہے تو اس کا آئے گا. تو تاریخی طور پر یہ کہا گیا کہ محمد بن قاسم نے جن لوگوں کے ساتھ متعین کیا تھا ان کے پاس سے تو خراج مقاسمہ لیا ہے. تو گجرات اور سندھ کا علاقہ، یعنی راجستھان کا بارمیر کا علاقہ، گجرات کا کچھ کا علاقہ، یہ سارا کا سارا راجپوتان میں شامل تھا. حضرت مولانا ابو ظفر ندوی صاحب، مولانا علامہ سید سلیمان ندوی کے رشتے دار ہیں بھانجے وغیرہ، انہوں نے گجرات کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ تمدن گجرات اور تاریخ گجرات، دو کتابیں لکھی ہے. احمد آباد میں یہ گجرات یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر تشریف لائے گئے. تو انہوں نے تاریخ سندھ دو جلدوں میں لکھی ہے، اور اس میں صاف لکھا ہے کہ ہمارا جو کاٹھیاواد کا علاقہ ہے، کچھ کا علاقہ ہے، یہ دونوں شامل تھے اس زمانے میں سندھ میں. حتیٰ کہ یہ جو ہے ہمارا گندار، یہ بھی کسی زمانے کے اندر اس پر اثرات ضرور تھے قوم طبا کے، اور یہ بھی من وزیر تاریخ سندھ یعنی سندھیوں کی حکومت کے زیر اثر تھے. سیدھی حکومت تو نہیں دیا لیکن زیر اثر ضرور تھے. جب کبھی حملہ کرتے تو آ جاتے تھے یہاں بھی، تو یہ ہمارا گندار اور دہیج بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا، افراد کے دوسرے سارے علاقے بھی. تو یہ جتنا بھی سندھ والا علاقہ ہے اور راجپوتانہ جس کو بولا گیا، یہ پورا کا پورا علاقہ اس میں تو حضرت محمد بن قاسم کے طریقے پر دیا جائے، ایسا علماء نے لکھا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی محمد بن قاسم سے ہی ان کی جو کتاب ہے اس میں شروع کیا، اور اس کی مقدار وہی ہوگی جو محمد بن قاسم نے لی. باقی دوسری زمینوں میں خراج موثر جو اسلامی اصول اور ضابطے ہیں وہ لیا جائے گا. پھر وجوب خراج کا رجحان، جن حضرات نے کہا کہ ہندوستان میں ان علاقوں میں خراج لیا جائے گا تو کون سا خراج لیا جائے، تو ایک تیسری شکل نکالی توزیع عمری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محصول کس طرح متعین کیا جائے. حضرت عمر نے صحابہ کرام کی جماعت کو جمع کیا. پھر ایران کے جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے، حضرت عمر کی فتح سے پہلے ایران میں دوشیرواں کا جو قانون تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا خراج میں بھی اور ذمے میں بھی، ذمیوں کے پاس سے جو ذمہ لیا جاتا تھا اس کی مقدار بھی حضرت عمر نے متعین کی، دوسری ماہ سے بھی کم متعین کی. الفاروق کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اس میں محصول پر بھی پوری تفصیل سے پورا آپ نے باب قائم کیا ہے، اور اسی طریقے سے خراج پر بھی پورا باب قائم کیا ہے، ذمے پر بھی پورا باب قائم کیا. بہت محنت سے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تیار کی ہے. خالی حضرت عمر فاروق کی تاریخ نہیں ہے، اسلامی نظام حضرت عمر نے جو نافذ کیا وہ پورے کے پورے نظام کو بھی آپ نے ذکر کیا. زمینوں کی اس سے پہلے کسی نے دوسری ماہ کے زمانے میں تھوڑا کچھ تھا، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. اسلامی قانون رومن لو سے لیے گئے ہیں، یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں نے جو قانون تھے وہ سب ہماری رومی قانون تھے، یعنی گویا اسلام میں جو حکومت اور سیاست کے چلانے کا نظام ہے نعوذ باللہ یہ سب کس سے لیا گیا،
सब इनके पास है। इस पर भी हमारा पूरा एक मुकालमा है और उसके अंदर पूरा तफसील से जवाब दिया है। अल्लाह पाक ने इत्तेफाक से किसी फ़कीह को शाम में पैदा नहीं किया, और जो इमाम औज़ाई यानी उस वक्त, अभी तो बाद में तो बहुत सारे आए जिस वक्त इस्लामी हुकूमत कायम हो रही थी, शाम में इमाम औज़ाई है, लेकिन वो भी मुहद्दिस ज़्यादा है फ़कीह के मुकाबले में। तो पूरा औज़ाई आ चुकी है, और दो जिलों में कुतुबखाने में है, उसका मौलाना रशीद साहब ने खुलासा भी पेश किया है। अभी फतवा नहीं है, खुदा है, लिखा हुआ है। तो उसके अंदर पूरी तफसील से लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक ने रोम के जो इलाके हैं, इमाम अबू हनीफा रोम में पैदा नहीं हुए, इमाम मालिक भी नहीं, इमाम शाफी भी नहीं, इमाम अहमद भी नहीं, ये सब के सब इसके इलाके जो किसी ज़माने में किसरा के ताबे। इनका तो ये कहना है कि हमसे लिया है। तो रोमन मुल्क शाम से शुरू होता था हुजूर के ज़माने में, मुल्क शाम से। इस इलाके में अल्लाह पाक ने कोई फ़कीह पैदा नहीं किया ताकि ये दावा करे कि इमाम अबू हनीफा ने चोरी की अपने इलाके के पुराने कानून से, तो अल्लाह पाक ने इसे महफूज रखा। दूसरी बात, उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफसीर, ये कहाँ से इनकी पैदावार है, कहाँ इनकी चौंस थोड़ी डूबेगी। उसूल हदीस इतनी तकसीम दर तकसीम करके, ये भी इस्लाम का एक मौजिज़ा है उसूल हदीस की। यही हाल, उसूल हदीस हल्की फुल्की बड़ी वो नहीं है। तफसीली तौर पर जो उसूल हदीस है ना, सारे अपने लवाजिमात के साथ वो मजमुआ मुराद है। इसी तरीके से उसूल फ़िक़्ह इतनी वजाहत के साथ, और मसाइल जुज़िया इतनी वजाहत के साथ, ये काम नहीं था रोमन अम्पायर का, ये काम इस्लामी फ़ुक़हा का था कि किताब और सुन्नत से मसाइल मुस्तंबत किए। इसलिए हज़रत उमर की तौज़ीफ़ उमरी को तो तौज़ीफ़ नौशीनवानी कहा जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भी हज्जाज इब्न यूसुफ के कहने की बुनियाद पर ही यहाँ इनसे मुकासमा किया था। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि ये खुसूसी रियायत थी हिंदुस्तान वालों के साथ, और इस्लाम को यहाँ फैलाना था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को मरने के बाद भी याद किया, और भरूच में उसकी तस्वीर बनी हुई थी, उसकी भी इन्होंने जिनको मारा दाहिर की भी, क्योंकि ये तो बनाने वाले तो गैर मुस्लिम थे, लेकिन वो जानते थे कि ये बहादुर आदमी है। इसलिए बहादुरी की बुनियाद पर अज़ाऊनी व अय्य फतन अज़ाऊनी, मोहम्मद बिन कासिम को जब यहाँ से ले जाया गया तो इन्होंने जो अशआर पढ़े हैं, चाल और हज़रत उमर ने जो मिक़दार मुतय्यन की है, कहा कि यहाँ मुतय्यन है, वही मिक़दार यहाँ भी जिक्र की है। अब जब क़िरात किसी को देना हो तो और भी किताब है, औज़ान शरइया, महमूदुल औज़ान, मुस्तकिल किताबें आ चुकी है। जरीब किसको कहते हैं, साथ तो इन्होंने 3.5 किलो का लिख दिया, लेकिन जरीब किसको कहते हैं, और इसी तरीके की दूसरी बहुत सारी इस्तिलाहात जो फुक़हा ने जिक्र की, वो भी इन्होंने। ज़मीनी पैदावार, दरख्त व सब्जियों पर उश्र। नंबर 1, ज़कात की तरह उश्र भी एक फ़रीज़ा है जिसका ताल्लुक ज़मीनी पैदावार से है। कुरान करीम में अहले ईमान को पाकीज़ा कमाई से ज़कात और ज़मीनी पैदावार से उश्र की अदायगी का हुक्म दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द। उश्र ज़मीन की हर पैदावार पर वाजिब है, या कुछ चीज़ें वुजूब उश्र से मुस्तस्ना है। इस सिलसिले में कुरान और हदीस के अमूमी दलाइल, शुरकाए सेमिनार के मकालत व आरा पर गौर व खोज के बाद सेमिनार इस नतीजे पर पहुंचा है कि बशमूल घास, दरख्त वगैरह हर ऐसी ज़मीनी पैदावार पर उश्र वाजिब है जिसकी पैदावार से मकसूद नुमा होती है और जिसे आमदनी की गर्ज से पैदा किया जाता है। लिहाजा तमाम ग़िज़ाई अजनास, मेवाजात, फलों और फूलों पर उश्र वाजिब है। अलबत्ता खुदरौ, दरख्त और घास जिनसे हुसूल आमदनी मकसूद न हो, उस पर उश्र वाजिब नहीं है। खेत में उश्र किन चीज़ों पर आएगा, बतला दिया कि जिनसे भी खेती बाड़ी होती है और जिसके जरिए आदमी कमाता है, उन चीज़ों को। अब किसी ने धनिया डाल दिए, किसी ने मेथी डाल दी, चलते हैं इस तरीके से। इस तरह की चीज़ें खाली खेत के अंदर एक तो मुस्तकिल पैदावार होती है, गेहूँ बोए हैं, चावल बोए हैं, और एक ये है कि जहाँ से पानी का नाला जाता है, रात दिन वहाँ पानी कसरत से होता है, तो इस किस्म की चीज़ें भी डाल देते हैं। इसी तरह आपने मकान है, मकान के अंदर हल्का फुल्का आपने छोटा सा बगीचा बनाया और उसके अंदर धनिया नहीं, तो इसमें उश्र नहीं आएगा। इस तरह कुछ बेलें लगा दी, दूधी वगैरह, तो इस पर भी नहीं आएगा। खेत में जो है उन सब पर आएगा। नंबर 2, वो दरख्त जिनसे फल मकसूद नहीं होता बल्कि जलाने या फर्नीचर और इमारत वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सनूबर, साखू, शीशम, सागवान वगैरह। अगर किसी उशरी ज़मीन को ऐसे दरख्तों के लिए खास कर लिया गया हो और उनकी काट से आमदनी मकसूद है, तो ऐसे दरख्तों के तैयार होने में चाहे जितनी मुद्दत दरकार हो, काटे जाने के वक्त उनसे या उनके आमदनी से उशर की अदायगी वाजिब होगी। बहुत से लोग हैं वलसाड जिले में, सूरत जिले के कुछ अंदर के इलाके, वहाँ पहले से सागवान लगे हुए हैं। गुजरात में कसरत से साग ही का दरख्त है। इसी तरह यहाँ बरूद के पास भी किसी ने बोए हैं, लेकिन वो बरसों के बाद बड़े होते हैं। तो जब होंगे उस वक्त उनके मकसूद भी कारोबार ही है। कारोबार मकसूद है तो अब ऊपर भी उछरा आएगा, चाहे बरसों के बाद आए।
नंबर 3, वो सब्जियां जो उशरी ज़मीन में बोई जाए और जिनसे मकसूद आमदनी हो उनमें उशर वाजिब है। अलबत्ता अपने मकान के गिरदोपेश की उफ्तादा आराजी या अपनी छतों पर लगाई जाने वाली सब्जियां वजूब उशर से मुस्तस्ना है। छोटी चीजें हैं वो, लेकिन किसी का मकान भी ऐसा है ना, 2 बीघे उसके साथ जमीन लगी हुई है, तो लेकिन उसको क्या कहा जाएगा? फार्म हाउस ही समझा जाएगा। मुज़ाराअत यानी बताई वाली काश्त पर उशर। जिन उशरी ज़मीनों की काश्त बतौर बताई के कराई जाती है उनकी पैदावार पर उशर के वाजिब होने के सिलसिले में सेमिनार ने गौर फिक्र किया और इससे मुतालिक आए हुए तमाम मकालात का जायजा लेकर इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर ज़मीन का मालिक और बताईदार दोनों मुसलमान हो तो दोनों पर अपने अपने हिस्से के बकदर उशर वाजिब होगा। बतौरे उशरी ज़मीन काश्त बतौरे बताई के किराए दी जाती है। बताई है अलग है, किराया अलग है। हमारे इलाके में यहाँ भरूच जिले में कसरत से उसको दोनों गुजराती में बोलते हैं और उसके ऊपर यही चलता है जमीन किराए पर लेना। तो जमीन किराए पर किया और लिया, जिसने जमीन किराए पर ली वही खेती करता है और देने वाला तो आराम से बैठा हुआ है, जिसने खेती ही नहीं की तो उस पर उशर नहीं आएगा, इस पर आ सकता है। लेकिन जिन इलाकों के अंदर जमीन को बाकायदा मुसाफाती के तौर पर उसको डोन बोलते हैं कि इतनी जमीन में इतना फीसद मेरा और इतना फीसद अनाज और गल्ला होगा वो तुम्हारा, आपस में इस तरीके से तकसीम होगा, ये असल मुसाफात है। ये तो किराए पर देना है, तो जमीन किराए पर दे रहे हैं, आप किराया ले रहे हैं, वो खेती कर रहा है तो उस पर उशरा आएगा या फिरा जाएगा और आपके ऊपर तो ज़कात ही आएगी। नंबर 2, अगर मालिक की जमीन मुसलमान है और दोनों खेती वाले हैं तो अपने अपने हिस्से के बकदर उशरा आएगा। मैंने जो बात की वो किराए की बात की है, दोनों गुजराती में बोलते हैं। अगर मालिक की जमीन मुसलमान और बताईदार गैर मुस्लिम हो तो मुसलमान मालिक पर उसके हिस्से के बकदर वाजिब। जमीन है और जो गैर मुस्लिम आपकी जमीन खेती कर रहा है तो आप पर उशरा आएगा या आपका खेत हो। उशर से इखराजात ज़राअत की मिनहाई। नंबर 1, फ़िकी सेमिनार के सामने ये मसला ज़ेर बहस आया कि आजकल काश्त के जदीद तरीकों में ज़राअत के इखराजात कदीम तर्ज की खेती के मुकाबले में कहीं ज़ायद होते हैं, लिहाजा इन बढ़े हुए इखराजात को वाजिब उशर की अदायगी से पहले असली पैदावार से मिनहा किया जाए ताकि काश्तकारों को सहूलत हासिल हो। सेमिनार ने इस मसले पर गौर किया और उसके हर पहलू पर गौर करने के बाद सेमिनार इस नतीजे पर पहुंचा कि उशर और निस्फ उशर शरीयत की तरफ से मनसूस मकादिर है और शरीयत ने काश्त को सैराब करने की बुनियाद पर इखराजात की कमी व ज़ियादती को असास तस्लीम करते हुए मिकदार वाजिब में फ़र्क किया है और दीगर किसी किस्म के इखराजात की रियायत करते हुए मिकदार वाजिब में तब्दीली का एतबार नहीं किया है और जो मिकदार वाजिब शरीयत ने तय कर दी है उसमें अक्ल व कियास का दखल नहीं और न किसी को मिकदार वाजिब में तब्दीली का हक है। दूसरी तरफ यह भी वाक़या है कि काश्त के जदीद तरीकों पर जहाँ इखराजात ज़ायद होते हैं पैदावार की मिकदार में भी मुअत्तद भी इजाफा होता है। लिहाजा सेमिनार ये तय करता है कि काश्त के जदीद तरीकों को खाद या दवा वगैरह मसारिफ पर होने वाले जायद इखराजात असली पैदावार से मिनहा नहीं किए जाएंगे। ये मसला 2-3 दिन पहले हमारे सदर मुदीर साहब के हवाले से क्या चुना वो इसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये शरीयत में मिनहा नहीं होगा। आपकी दवाई का खर्चा शरीयत ने पानी वाला और बगैर पानी वाला इसका तो फर्क किया है, इसकी बुनियाद के ऊपर आपके उस्र में या खिराज में खास करके उस्र में ज्यादती हुई है। लेकिन आपने दवाई के तौर पर किसी चीज को लिया, इसी तरह खाद के तौर पर लिया, तो आप ये कहो कि मेरा तो इतना खर्चा हुआ है, इसलिए जब पैदावार हुई तो पैदावार इतने की और खर्चा इतना, उस खर्चे में आप इन दोनों को गिनोगे तो बताएगा मोतबर नहीं होगा, ये खर्चे नहीं चलेंगे। इसको साइड पे करके असल जो खर्चा हुआ तुम्हारा वही गिना जाएगा। इसलिए कि किताब व सुन्नत से पानी वाला और बगैर पानी वाला उसका तो फर्क किया गया है, दवाई वाला ने बगैर दवाई वाले का फर्क किया नहीं गया। दूसरी बात यह कि दवाई के इस्तेमाल से पैदावार भी तो फिर बाद में बढ़ती है, जरासीम वगैरह बढ़ जाते हैं, लेकिन फुक़हा बैठे हैं मदरसों में और काश्तकार हजरात बेचारे खेत में लगे, उनका ये कहना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता। हमने कहा कुछ नहीं होता तो नहीं देना है, जब होगा तभी तो देना है, लेकिन जब होगा तो अगर ऐसा हो कि बराबर सराबर खर्चा हो जाए तो ऐसा भी होता है कि कभी अंदर भी जाना पड़ता है खेत में तो काश्तकार। लेकिन अभी इसका चंद सालों से ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकारों को अच्छा खासा मिल जाता है, ज़मीन जैसी होती है उसके मुताबिक होता है, इसलिए फतवा तो इसी पर है। अब मुफ्ती के पास कोई आदमी आया और मुफ्ती ने देखा कि इसके बेचारे की आमदनी इतनी है, दवाई का खर्चा, खाद का खर्चा इतना है और पानी का खर्चा इतना है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके हद में ये चीज़ों को मिनहा कर सकता है। इंफिरादी मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, इंफिरादी शख्स के लिए। इज्तिमाई फैसला तो जब आपसे मसला पूछा जाए तब तो यही बनने का दौर है, नहीं बनने का। जुमहूर से हटेंगे आप
तो बहुत सारे दुश्मन कभी तो खुद पैदा होते हैं, मौलवियों को दुश्मन लाने की ज़रूरत नहीं। हसद का पुतला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं, शैतान लेके जा रहा था, तो किसके लिए था? तो मौलवियों के। एक तो वो है। दूसरा, अवामुन नास में से कुछ ऐसे होंगे कि बगैर लेने देने के वो आपके कितनी अबदी अजली दुश्मन है। बस कुबेर बिगुम में उनका आपके साथ चेहरा नहीं हुआ है, इसलिए हुई। इसलिए बगैर किसी के काम के, वो आपको जानता होगे ना, आप उसको जानते होगे नहीं, वो आपसे दुश्मनी जरूर करेगा। इसलिए जमान साहब फरमाते थे सफ़ेद कपड़ा है मौलवी, उसका दाग जल्दी नजर आएगा। आप नमाज में कितने बजे जाते हैं, कब आते हैं, किससे बैठते हैं, किससे नहीं बैठते, ये सारे मुनकर नकीर और किरामन कातिबीन बन के वो बैठे हुए होते हैं। नंबर 2, हजरत इमाम। जब जमहूर से अलग हटेंगे फतवा देने में तो बड़ी परेशानी आएगी। आप ये कहोगे बंदों ने अलग बात करो कि उनके बाद में विधि बात कही गई, तो इसमें परेशानियां ज़्यादा है। लेकिन दूसरी बात है कि जब परसों आप इस्लाम में लगेंगे, उसके बाद आपकी नीयत में कोई फितूर नहीं है। किताब सुन्नत के उसूल और ज़ाब्तों की रोशनी में आप देख रहे हैं एक शख्स को कि ये बेचारा कियास वाले मसले में नहीं है, इस्तेहसान वाला है। उसकी दलील किताब सुन्नत के खिलाफ एक आदमी मुकर जाएगा। हज़रत थानी का जुमला सुन चुके हैं, हज़रत गंगोही से इजाज़त लेने की इबादत के अलावा बाकी तमाम मसाइल में सलाह में से किसी के कॉल में भी गुंजाइश निकलती हो बे के जवाज़ की, तो मैं, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना है। हज़रत थानी ने खुद इस्तेमाल किया है ना, इनके शागिर्दों में मुफ्ती शफी साहब ने तो कड़ी शर्तें लगा दी। अल-बलाग नंबर आया है इनके इंतकाल के बाद, उसमें जो ये मज़मून आया है दूसरा इम्मा के मसले पर फतवा देने के उसूल व ज़वाबित, वो हमारी जो किताब है दूसरा इम्मा के मसले पर, उसमें उस पूरी इबारत को मैंने नकल किया है अल-बलाग में से। हमारे यहाँ तो नहीं है, हासोद में अल-बलाग नंबर वहीं से लाए थे और उसी में से उस इबारत को नकल किया है। तो फतवा तो इसी पर दिया जाए कि जदीद मशीनरी वगैरह, जदीद खाद वगैरह जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं, अब मसलन पहले ज़माने में बैलगाड़ा इस्तेमाल होता था। किसी को आपका नहीं है खुद रखते थे, और आपका नहीं है तो किसी और का इस्तेमाल करते थे। तो छोटी काश्तकार होते थे, वो दूसरे से इस्तेमाल करते थे। और अब वो नहीं रहा, अब ट्रैक्टर रहा है, अब घर घर ट्रैक्टर हो गए हैं, तो अब लोग उससे खेती करते हैं। तो ट्रैक्टर की कीमत तो ज़्यादा देनी पड़ी, लेकिन थोड़े वक्त के अंदर आपका काम बन गया। फिर ये कि वो 1 साल का नहीं है, उसमें तक चलता रहेगा, तो इस तरीके से इससे फ़ायदा होगा। बैल के तो मरने का खतरा है, यहाँ मशीनरी के मरने का खतरा कम है। पहले बंगाल में भी तो जाएगा, जाना नहीं है, लेकिन ये एक नंबर 2, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह और बाज़ दीगर फुक़हा की राय में आयत और बाज़ अहादीस के उमूम के पेश नज़र वुजूब उशरा के लिए पैदावार की मिकदार का कोई निसाब नहीं है। हर वो शय जो ज़मीन से पैदा हो, चाहे वो कलील मिकदार में हो या कसीर मिकदार में, उशरा का निकालना वाजिब होगा। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह व दीगर जमहूर अइम्मा के नज़दीक हदीस लैसा फ़ीमा दून खम्सत औसकिन सदक़ा की रोशनी में 5 औसक से कम अगर पैदावार हो तो ऐसे लोगों पर उशरा वाजिब नहीं है। सेमिनार की राय में छोटे काश्तकार या कुदरती आफात की वजह से बहुत कम मिकदार में पैदावार हासिल होने की सूरत में मुतलकन वुजूब उशरा के कौल के नतीजे में दुश्वारियों में मुब्तला होते हैं। इसलिए ऐसे हालत में जबकि किसी काश्तकार की कुल पैदावार 5 वसक या 6 क्विंटल यानी 6 क्विंटल 53 किलोग्राम से कम हो तो साहिबैन व दीगर जमहूर अइम्मा के कौल पर अमल करते हुए अगर कोई ज़रूरतमंद शख्स इस पर उशरा न निकाले बल्कि पूरी पैदावार को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए तो ऐसा करना जायज़ है। बाज़ शुरका का रुझान है कि अगर निसाब से कम पैदावार हो और दूसरे ज़राए कफालत मौजूद न हो तो खुद इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। कि जब हदीस शरीफ में ये फरमाया गया कि माल पर इलाज है, उशरा है और इलाज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुतलक हुआ। इसलिए 1 किलो हो टमाटी तब भी उसका उशरा निकालना है, 10 किलो हो तो भी। इन उलमा ने ये कहा है कि साहिबीन के तौर पर आजकल फतवा देने की गुंजाइश मिलती है उन हजरात के लिए। इसकी 2 शर्तें बतलाई। एक तो निसाब से कम मिकदार में उसका हुआ है, 6 क्विंटल और 6.5 क्विंटल के से कम हुआ है, तो ये हिसाब से कम में हो गया। हम सके औसत में है और ये हम सके औसत से कम है, इसलिए उसके लिए उशरा नहीं। दूसरी बात यह है कि उसके लिए खेत भी है और साथ में दूसरी जरिया आमदनी भी है, तब तो उसके पास से लिया जाएगा। लेकिन अगर जरिया आमदनी नहीं है, कुछ हजरात ने ये कहा, कुछ हजरात ने कहा कि जरिया आमदनी हो के न हो। ये जो हदीस शरीफ में आया नहीं सकी मालूम कमसा और ये कम हुआ है, इसलिए उसके ऊपर उशरा वाजिब नहीं होगा। अब आपको फतवा पूछने के लिए कोई आए, अगर एक तो मुसलमानों को मालूम ही नहीं है उशरा, पूरे गुजरात में फिर करने को पूछो कि किसी पर उशरा आता है, काश्तकार है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी मालूम नहीं है। डंकारिया में एक हाजी साहब देते थे, हाजी राहुल, वो भी मसला मालूम था तो फिर ये मौलाना लोग देते थे, तो फिर काश्तकार को। बाकी आम देहातियों को कोई पता नहीं था किसी को।
تو جن کو اس طریقے سے مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے ان کو تو مسئلہ بتلایا جائے کہ شریعت میں خراج ہے اور پھر اس قسم کی پریشانی ہو تو اس کے لیے گنجائش دی جائے. مکھانا مچھلی و ریشم پر عشر. نمبر 1. پانی میں کاشت کی جانے والی چیزیں مثلا مکھانا سنگاڑا وغیرہ زمینی پیداوار میں سے ہے اور ان سے استغلال ارض ہوتا ہے اس لیے ان پر عشر واجب ہوگا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں مکھانا تو جانتے اب تو ملتا بھی ہے بازار میں. یہ کمل کا پھول ہوتا ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ عالم اور یہ درخت عموماً ہوتے ہیں پانی میں. برسوں سے چھوٹے تھے تو لڑکے سب جاتے تھے تو راستے میں ہلکی کا تالاب آتا تھا ریلوے میں آتا ہے نہیں تو پورا کا پورا بھرا ہوا تھا وہ کسی قسم کی بیروں سے اوپر سے نیچے پانی نظر ہی نہیں آ رہا. تو اگر ایک آدمی نے اس طریقے سے اپنے یہاں پانی کا تالاب بنایا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہے مکھانے ہیں یہ کمل کا پھول وغیرہ اس سے اور اس کو کھانے کی اتنی فضیلتیں بتلائی جاتی ہے اندر میں پورا بھرا بھرا ہے. اسی طرح سنگارا تو جانتے ہیں آپ کھاتے ہیں. اس طرح پانی میں اگنے والی وہ تمام چیزیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح خربوزہ بھی اس کی بھی کاشت ہوتی ہے زیادہ تر پانی کے قریب ہی اس کی ہوتی ہے. اگر پانی میں نہ بھی ہو تو خیر وہ تو مستقل بھی پیٹ ہو گیا. اور اس طرح پانی میں بھی اگائی جانے والی چیزیں مچھلی میں اسے نہیں آئے گا. مچھلی پر تو زکات آئے گی آپ کے اوپر زکات آئے گی آپ کا تالاب ہے مچھلیوں کا کاروبار ہے تو لیکن یہ استغلال اور جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے زمین سے غلہ وغیرہ نکلتا ہے زمین سے چیزیں نکلتی ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی گنا گیا ہے کھیتی میں ہی اس لیے ان پر عشر آئے گا. نمبر 2. تالابوں وغیرہ سے تجارت مچھلیوں کی پرورش کی جاتی ہے یہ زمینی پیداوار میں سے نہیں بلکہ اموال تجارت میں سے اس لیے ان پر مچھلی پانی مٹی میں سے نہیں پیدا ہوتی اور غلہ اور اناج تو اس میں سے نکلتا ہے اس لیے ان پر عشر کے احکام جاری نہ ہوں گے بلکہ مال تجارت کی زکات کا حکم ہوگا. نمبر 3. اگر عشری زمین میں شہتوت کی کاشت ریشم پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور شہتوت کے پتوں کو ریشم کے کیڑوں کی غذا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جن اراضی کو شہتوت کے پتوں کے ذریعے دریائی آمدنی بنایا جاتا ہے ایسی اراضی پر شہتوت کے پتوں پر عشر واجب ہوگا. بعض شرکائے سیمینار کی رائے میں پتوں پر عشر واجب نہیں اس سے حاصل شدہ ریشم پر زکات اموال اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہوگی. اب یہ اختلاف ہوا علماء کے درمیان. شہتوت کا کیڑا آتا ہے انگریز جب آئے چائنا میں گئے چائنا پر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو یہی پتہ نہیں چلا کہ یہ ریشم کا کیڑا ہے کیا. کتاب ہے جاپان و چین ناقابل یقین اور میں ایک مولانا نے لکھی ہے بہت اچھی کتاب ہے. مولوی کو تھوڑا تھوڑا اس کو بھی پڑھنا چاہیے. دوسری تو دنیا بھر کے لواڑے موبائل میں آتے ہیں اس کے بجائے دنیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز برسوں تک پریشان رہے کہ آخر یہ ریشم آتا کہاں سے ہے. ریشم کے کیڑے اسے چھپا لیے چائنیز لوگوں نے کہ پتہ ہی نہیں چلا. لیکن انگریز قوم تھی دنیا لوٹنے کے لیے آئی تھی تو کسی کو بھی کھول کے سب کچھ کر سکتے ہیں. جب اسماعیل شہید احمد شہید کو بھی افغانوں کو کھول کر ان کو بھی ناکام کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. کیا اسی کو ہے تو انہوں نے تلاش کر لیا. اس میں یہ قصہ ہے ریشم والا. شہتوت کے پتے آتے ہیں یہ شہتوت کے پتے قریب قریب ہمارے یہاں آصف رانی بیوی آ گئے. اب بھی آصف طرح کے پان آتے ہیں دال ماتی والے کے بھی دروازے کی جنگلی بازو پہلے تھا وہ ہے کہ نہیں معلوم ہے. بڑے بڑے پتے آتے ہیں اسی سے بیوی بناتے ہیں گجراتی میں نہ آہد رانی بیوی کے. تو یہ اسی طرح شہتوت کا بھی درخت اس سے ملتا جلتا ہے. یہی شہتوت کا ہے یہ نہیں ہے اس سے ملتا جلتا آتا. تو اس کے کیڑا ایک آتا ہے وہ شہتوت کی پتیاں کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اس کے منہ سے لعاب نکلتا ہے. ایک بار کی چالش نے نیچے رستوں کرتی کرتی جائے کمام ہے معلوم مسمبری نے. تو اس طریقے سے ریشم کا کیڑا بھی ایسا ہے اس سے ریشم نکلتا ہے اور وہی اصلی ریشم ہے. یہ تو سلک کی ہے سلک رود ہے نہیں افغانستان کا مشہور ہے وہاں کا. تو سلک رود اسی کو یہ اصل ریشم ہے. شاہ راہ ریشم اس کو اردو میں بولتے ہیں. تو یہ کیونکہ وہاں ریشم ہی کی تجارت ہوتی تھی اس لیے اس راستے کا نام ہی شاہ راہ ریشم ابھی اسی کے جگ رہے ہیں سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ. تو اگر ریشم کا کیڑا اس کو درخت کے ساتھ وابستہ سمجھا جائے تو اس پر عشر آنا چاہیے اور حضرت کو مستثنا قرار دیا جائے کہ یہ تو پتا کھاتا ہے پتے میں سے اگتا نہیں ہے ریشم یہ کھاتا ہے نہیں اس میں سے نکلتا ہے لعاب کے ذریعے. تو کچھ حضرات نے کہا کہ اس کو الگ کر کے زکات کی جائے. جنہوں نے یہ کہا انہوں نے وہ کہا جنہوں نے یہ کہا. مکان چھت گرد و پیش کی افتادہ اراضی اور اراضی یا اوقاف پر عشر. مکان کے اندر کی اراضی یا اس کی چھتوں یا مکان کے گرد و پیش کی افتادہ اراضی میں ہونے والی سبزیاں پھلوں وغیرہ. اسی طرح اوقاف کی اراضی خصوصاً وقف علی الاولاد
वक्फ अल औलाद की अराजी में उशर वाजिब है या नहीं। इन मसाइल पर गौर व खोज के बाद सेमिनार इस नतीजे पर पहुंचा कि चूंकि वजूबी उशर के लिए ज़मीन का उशर होना शर्त है और मकान की ज़मीन न उशरी है और न ही खिराजी, इसलिए मकान के अंदर की अराजी या उसकी छतों या मकान के गिरदोपेश की उफ्तादा अराजी की सब्जियों और फलों वगैरह में उशर वाजिब नहीं होगा। चूंकि वजूबी उशर के लिए ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी नहीं है, यही वजह है कि गैर ममुलका अराजी में भी उशर वाजिब है। इस उशर पैदावार में वाजिब है, न कि ज़मीन में। इस जो खेती करता है वो भी और जिसकी ज़मीन है दोनों मुसलमान है तो दोनों पर उशरा आता है। मालूम ये हुआ कि उशर खेती की पैदावार पर होता है, मालिकाना हक हो या ना हो। इसलिए अराजी या औकाफ में भी उशर वाजिब होगा, ख्वा औकाफ आम्मा की अराजी हो या वक़फ़ अल औलाद की। ये दो मसले जिक्र किए। पहला तो आप सुन ही चुके हैं कि मकान के अतराफ के अंदर छोटा होता है, लेकिन मैं आपको कह चुका हूँ मकान है और फार्म हाउस से बंगले की तरफ, तो फिर उसकी तो उशरा आएगा। दूसरा मसला बताया कि वक्फ अल औलाद, ये मुस्तकिल मसला है, वक्फ तो पढ़ के आए हैं। वक्फ अल औलाद का मसला भी बड़ा नाजुक है। फुक़हा किराम ने गुंजाइश दी है कि जिस तरीके से आप किसी और के लिए वक्फ कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए भी, लेकिन फिर आपके अल्फाज के ऊपर होता है। आपने ये कहा कि मेरे बेटों के लिए वक्फ, तो बेटों के लिए होगा न पोतों के लिए होगा, कि वो वक्फ की ज़मीन असल वक्फ में चली जाएगी अल्लाह के यहाँ। लेकिन आपने इनका नाम लिया है तो उन तक रहेगी। 10 पुश्तों तक लिखा है वक्फनामे में कि मेरे मरने के बाद मेरी ये ज़मीन मेरी 10 पुश्तों तक चलेगी, तो वहाँ लेकिन बोलना ज़रूरी है। आप कहो कि क़यामत तक के लिए मेरी औलाद पर वक्फ किया तो कुछ आएगा, क़यामत तक तो फिर ये वक्फ ही क्या हुआ है, तो आपकी औलाद ही खाए पिएगी। इसलिए इतना हस्र करना ज़रूरी है कि 2 औलाद 3 औलाद 5 औलाद पोते पर पोते कहीं भी किसी पर जाकर अटक ना है। क़यामत तक के लिए रखोगे तो इसको वक्फ वाला औलाद। ये मसला अंग्रेज़ी कोर्ट में आया था। अंग्रेज़ों ने कहा कि ये क्या, इन्होंने पहले तो मना किया था, तो मुसलमानों के मसाइल अंग्रेज़ी हुकूमत में चले तो वक्फ वाला औलाद हमारे ताजी थे, वहाँ तक तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब अंग्रेज़ आए जज तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने ही बच्चों को देना है, तो इसको वक्फ चैरिटी कैसे कहा जाएगा। उसका जवाब दिया कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश है। इसलिए वक्फ वाला औलाद की भी गुंजाइश, जब दूसरों को दे सकते हैं तो अपनी औलाद को भी, लेकिन देना नहीं है, यहाँ तो वक्फ करना है। इसलिए एक मुद्दत के बाद ये चीज़ जाएगी वक्फ में। हमारे एक रिश्तेदार हैं नांदेड़ में, उनके हजीरतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से गैर साहब थे, उनके नाना कुशल हो गए हैं, तो उन्होंने मसला जिक्र किया वक्फ वाला औलाद का। तो हमने कहा कि जब आखिरी चीज़ आ गई, इन्होंने जहाँ तक किया था तो फिर उसके बाद आपको देना है वक्फ। अब ये वक्फ आप किसके लिए दो, अगर मरने वाले ने वसीयत की है कि इनके बाद पुरानी जगह तो वही वक्फ, और नहीं किया तो फिर ये लोग अपने एतबार से मशवरा करके किसी जगह मतलब वक्फ हो जाएगा। इनकी मिल्कियत अब इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगी। अब किसको वक्फ करना है ये सलाह मशवरे से, अगर वाकिफ ने कुछ लिखा है तो तशर वही होगा, लेकिन नहीं है तो इसको तो वक्फ अल औलाद की अराजी हो या गांव की ज़मीन हो। इससे पता चला कि वो ज़मीनें जो मस्जिद की है, मदरसे की है, मस्जिद मानों को भी उसमें देना पड़ेगा, वलियों को अपनी जेब से नहीं, वही उसी पैसे से, और जो खेती करता होगा मुसलमान को भी उसे देना पड़ेगा।